सत श्री अकाल, मैं जसमीत कौर। एबीपी सांझा स्पैशल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। श्री करतारपुर साहिब के लांघे का नींह पत्थर रखा गया। अज असीं गल करांगे उन्हां छक्कियां दी जो कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मौके डेरा बाबा नानक विखे चढ़े। इस कॉरीडोर का नींह पत्थर रखण दे नाल सिखां दी रूह खिड़ उठी। इस मौके जिथे साडे बहुते सियासतदान राजनीति करन तो बाज नहीं आए, उत्थे कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू सियासी रैली दे विच नहीं गए, सगों वो डेरा बाबा नानक गए, जिथे उन्हां श्री करतारपुर साहिब दे दूरबीन दे नाल दर्शन कीते अते अरदास कीती। इस मौके उन्हां दे नाल खास गलबात कीती साडे स्पैशल कोरस्पोंडेंट असीम बसी ने। सिद्धू साहब, तुसीं इत्थे दर्शन स्थल ते पहले भी अरदास करके गए सी, अज लांघा खुल्लण जा रहा, लांघा दे नींह पत्थर रखण जा रहा, अज तुसीं फिर अरदास कीती है। मेरी अरदास उन्हां 12 करोड़ नानक नाम लेवा वीरां मातावां भैणां उन्हां चों इत्थे किन्ने ही खड़े है, ये मुराद बाबे नानक ने आप पूरी कीती है। बाबे नानक दे वास्ते खुल गए ने रास्ते। ये उस बाबे दी नज़रे इनायत है। इन्हां वीरां दी जिहड़ी अरदास हर रोज़ करदे सी कि बाबे दे ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੈ, 12 ਕਰੋੜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਮਨ ਮਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕੀ ਧਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਧਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲਵੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਿਟਾਈ। 4 ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਫਾ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਨਿਊ ਚੁਣਿਆ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਧਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਸਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੋਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੂਰ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਢੇਰ। ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਭ? ਹਾਂਜੀ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ। 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਧੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ, ਅਮਨ ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਘਟੇ। ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਘਟਣ ਦਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਡੀਆ और पाकिस्तान ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। करतारपुर कॉरिडोर के लिए आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। भारत की तरफ और पाकिस्तान की तरफ रखा जाएगा। 28 तारीख को इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रखेंगे, साथ में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे। लेकिन आज वहाँ पे एक रैली हो रही है जहाँ पे पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं हर पार्टी के, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सीधा ही डेरा बाबा नानक की उस जगह पे जाते हैं जहाँ से गुरुद्वारा करतारपुर साहब नज़र आता है। वहाँ वो दूरबीन के राय दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं, लोगों से मिलते हैं और वापस आ जाते हैं। रैली पे नहीं जाते हैं। हमारे साथ हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब, आप वहाँ गए, थोड़ी टाइम रहे, लोगों से बात की, अरदास की और वापस आ गए माथा टेके, रैली पे नहीं गए? मैंने वहाँ पहले अरदास की थी कि जिस दिन मेरे बाबा नानक तेरी नज़र इनायत होगी और मेरे दोस्त फरिश्ते इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है उस पर बूर पड़ेगा, मैं यहाँ आके तेरा शुक्राना ज़रूर करूँगा। और वही हुआ। जैसे ही मुझे ये पता लगा, मैंने कमलनाथ जी से बात की, राहुल भाई से बात की, अहमद पटेल साहब से, सिंधिया साहब से बात की, तो उन्होंने एग्री किया कि कल जो तुम्हारी रैलीज ख़त्म होंगी तो तुम ये स्पेशल प्लेन ले जाना, वहाँ अरदास करके फिर वापस आ जाना। ये था कि अगर फंक्शन में जाना था तो हेलीकॉप्टर को वहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब के मुझे यहाँ छोड़ना पड़ना था, लेकिन वो प्रोटोकॉल है कि जब प्रेसिडेंट लैंड करते हैं तो उसके बाद हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हो सकता। तो मुझे 4 रैलियाँ करनी ही हैं। मैं वहाँ गया, अपनी वो जो मन्नत मैंने मांगी थी वो पूरी की, अरदास की, और मैं वैसे भी सियासत से दूर हूँ और अपने फ़र्ज़ अपने धर्म पूरे करके मैं उन खुशियों में शरीक होके दुआ करके मैं अपने कर्तव्य पथ पे वापस लुट जाऊंगा। और धन्यवादी हूँ राहुल जी का, अहमद पटेल साहब, कमलनाथ जी, सिंधिया साहब का, कि उन्होंने ये मेरी मन्नत मुराद पूरी करने के लिए ये प्लेन मुझे दिया ताकि मैं वहाँ जाके वापस आ सकूँ। अदरवाइज़ यहाँ आने का तुक नहीं बनता था। बट क्योंकि 4 रैलीज़ हैं, थोड़ा लेट ज़रूर हो जाऊँगा, लेकिन प्रयास करूँगा कि वो 4 रैलीज़ ख़त्म करूँ। वहाँ पे आप पहुँचे, आपने अरदास करी, लोगों से मिले, लेकिन एक वहाँ बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ केंद्र से कुछ लोग आ रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी के वहाँ लोग हैं, मुख्यमंत्री भी वहाँ हैं, लेकिन आपने सिर्फ गुरुद्वारे में माथा टेका, अरदास करके आ गए। वहाँ आपको लगता है वहाँ जाना चाहिए था? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजनीति से परे होती हैं। मैं इस क्रेडिट वॉर में पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ और आगे आने वाले टाइम में भी नहीं रहूँगा। राजनीति हम स्टेजों से बहुत करते हैं, ये धर्म का मामला है, ये एक ऐसा रास्ता है जो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा, अमन अमान का, प्रॉस्पेरिटी का, आने वाले पीढ़ियां जो हैं उनके लिए बहुत सारी आस का, विश्वास का। तो मैं उसे उस तरह से देखता हूँ और पहले दिन से ही मैं कहता हूँ कि इस धर्म के मामले पे
आप राजनीतिक रोटियां मत सेको, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने का मतलब ये है कि आप धर्म को टूल बना रहे हैं लोगों को बांटने का। ऐसा नहीं है, धर्म जोड़ता है। हाँ, कोई मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। बाबा नानक की तो फिलॉसफी ये है कि हम सब एक हैं, एक ही ओंकार है, उसी का हम सब हिस्सा हैं। और उनकी फिलॉसफी ये आपसी भाईचारे पे, बगैर ऊंच नीच के, बगैर जात पात के, कर्म प्रधान है। नाम जपो, वंश को कीर्त करो। इसलिए मैं उनके रास्ते पे चलता हूँ। और आज उनकी नजर इनायत में इमरान खान साहब, हमारी गवर्नमेंट, इनकी जो नजर इनायत हुई है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है कौम को उभारने का, कौम को खुशियां बांटने का। लोगों की सरकार लोगों के वास्ते होती है। सरकारों ने दिखाया है कि वाकई कुछ लोगों के लिए किया जाएगा। आप पाकिस्तान गए थे, वहाँ वापस आए, एक उम्मीद लेके आए थे। आपने जैसे ही बॉर्डर से स्टेप इन किया, वहीं पे भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये जो जनरल बाजवा को जफ़ी वाली बात को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, वो बात गुरु नानक देव जी के जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उसके लांघे की है, उसके कॉरिडोर की है। तब कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वो चीज़ें सच हो रही हैं। वही भारत सरकार आज यहाँ पे नींव पत्थर रख रही है, पाकिस्तान भी रख रहा है। किसी भी इंसान की काबिलियत को आंकना हो तो आप ये देखिएगा उसने कार्य संपन्न कैसे किया। यू रेट एबिलिटी इन मेन एंड वुमेन बाय व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। आप समझ लो, आज वो अमली जामा पड़ गया है। आज आस विश्वास में तब्दील हो गई है। आज सब कुछ हकीकत हो गया है। फॉर एवरी सिंधी भाई, फॉर एवरीबॉडी हु इज अटैच्ड टू बाबा नानक, जो बाबा नानक के नाम लेवा हैं, उनके लिए हर्षोल्लास है। उनके लिए बाबा नानक की ये असीम कृपा से उनकी पगड़ी उस दर पे लगेगी, जीवन सफल हो जाएंगे। ये अपने इमरान खान साहब और ये सरकार। ये बात तो आपसे ही शुरू हुई थी जब आप वापस आए। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि दिन खास है, करोड़ों का विश्वास है, जीता जागता इतिहास है। तो जब परमात्मा की मेहर होती है, ऐसे ही आप इतिहास का हिस्सा बन जाते हो। बंदे की कोई औकात नहीं तो 3 महीने में ये कैसे संभव था? जो 71 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में होता है। यही बाबा नानक का चमत्कार है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों की हमेशा ही बात रहती है। ये कॉरिडोर आज नींव पत्थर रखा गया है भारत की तरफ से, पाकिस्तान रखेगा, इसको आप भी यहाँ शामिल होंगे। आपको लगता है ये पीस, प्रोस्पेरिटी, ये टेररिज्म को बीट करे पाएगी ये चीज़? देखिए, पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। एक सकारात्मक स्टेप जब आप लेते हो तो सारी नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाती है। एवरी नोबल एक्ट मेक्स अ वे फॉर इटसेल्फ। क्या वो जरिया है जो इस खून खराबे को दूर कर सकता है? यही है कि दोनों देशों के संबंध सुधरें, उन संबंधों के साथ अमन अमान हो, ये खून खराबा बंद हो। टॉक्स क्यों होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों बनते हैं? इसी वजह से बनते हैं। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये बेहतरी के लिए हुआ है, ये अमन अमान के लिए हुआ है, और ये उस परमात्मा की रज़ा है कि अब रिश्ते सुधरेंगे, बेहतरी आएगी, और काली रात, अंधेरी रात के बाद एक नया उदय होगा। जहाँ पतझड़ है वहाँ बहार है, जहाँ अस्त है वहाँ उदय है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला भी है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद जारी ने नवजोत सिंह सिद्धू के नाल गलबात के कुछ होर अंश। कांग्रेस ने आपको स्टार प्रचारक बनाया, स्टार कैंपेनर बनाया, और अब लगातार कैंपेन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपने कैंपेन किया, राजस्थान आप कैंपेन करेंगे, अब मध्य प्रदेश आप कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं। किस तरह का मूड देखते हैं? 2019 इलेक्शन आ रहा है और कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेवारी डाली है आप पर। देखिए, जो उत्साह मैंने देखा है वो उत्साह साफ दर्शाता है कि बदलाव, परिवर्तन और एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि लोग चाह रहे हैं कि
अब कुछ नया किया जाए, अब कांग्रेस को मौका दिया जाए। इतना जोश है, इतना उत्साह है और इतना एंथुजियाज्म है लोगों में कि आपको देख के ही लगता है कि इतना करंट है कि ये बदलाव पक्का है। वैसे भी दूध को भट्टी पे रखो, उसका उबलना निश्चित है। जनता में रोष आक्रोश आ जाए, सरकारों का उलटना भी निश्चित है। तो ये विश्वास कैसे लगातार आप नरेंद्र मोदी पे अटैक कर रहे हैं रैलीज में जाकर? इसलिए कि जो वायदे किए गए थे 15 लाख रुपया वो नहीं हुआ, ब्लैक मनी वहाँ से लाना, मोदी सरकार अमीर पूंजीपतियों की कठपुतली बन गई है। एनपीए बढ़ गए, 2 लाख करोड़ से जो सरकारी बैंकों से कर्जे लिए थे, और सरकारी से ही हैं, प्राइवेट बैंक से किसी से कर्जा नहीं लिया गया क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर से हुआ है। वो 2 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ हो गए। 2,70,000 करोड़ अमीरों को इंसेंटिव के मामले में वो कर्जा माफ़ किया है। गरीब का किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, गरीब के पास वो 15 लाख आए नहीं, 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं, समझे। नोटबंदी, कितने रोजगार, 93% इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, 80% कैश पे चलती है, उसकी कमर तोड़ दी, गरीब को नुकसान झेलना पड़ा, किसान अस्त व्यस्त है। तो ये जो 4.5 साल की उम्मीद थी, लहर थी, यही कहर बन गई। विधानसभा फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 3 जगह पे आप रैली कर रहे थे, तेलंगाना में भी जाएंगे आप, किस तरह की वेव है? ड्यूटी सब जगह लग रही है, मुझे हर जगह भेजा जा रहा है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। और भाई के साथ मेरी बातचीत होती रहती, हम प्रयास रहित हैं। देखिए, वायदे और अंडे टूटते, कोशिशें कामयाब होती हैं। कोशिश है कि ये स्टेट से एक शंखनाद हो, उद्घोषणा हो और एक ऐसा माहौल बने कि हम इन स्टेट्स में सरकार बनाएं और ये नींव धरी जाए। ये मूड बदल जाएगा नेशन? बिल्कुल बिल्कुल, माहौल बदल जाएगा। इलेक्शन माहौल का होता है, 100 मन दूध में खट्टा डाल दो तो दूध फट जाता है। तो ये छोटी चीज नहीं, बड़ा संकेत होगा, उद्घोषणा होगी कि राहुल गांधी लाल किले पे झंडा फहराएंगे। फाइनली 28 को आप पाकिस्तान जा रहे हैं। हमेशा ही इमरान खान ने एक दोस्त की तरह आपको ट्रीट किया है, दोस्ती भी निभाई है। दोनों मुल्कों के रिश्ते सुलझे, इसके लिए दोस्त के लिए क्या पैगाम? मृत अतीत को दफना डालो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। स्मरण रहे, हमारा हर शब्द, हमारा हर विचार, हमारे कर्म हमारे भविष्य को बना रहा है, भविष्य का निर्माण कर रहा है। मुझे लगता है उन्हें ये सब कहने की बात ही नहीं, क्योंकि उनका हर कदम सकारात्मक है, उनका हर कर्म भविष्य के लिए है, अगली पीढ़ी के लिए है। वो दिखता है, कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से, इंसान अपने कर्म से, इसीलिए मैं उन्हें फरिश्ता मानता हूँ। ये थे नवजोत सिंह सिद्धू, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, जो कि कांग्रेस के लिए स्टार कैंपेनर भी हैं। आज ये सुबह गए डेरा बाबा नानक, वहाँ माथा टेका, अरदास की। वही जगह है जहाँ से इन्होंने मांगा था कि हाँ, ये लांगा खुलना चाहिए। आज नहीं पत्थर रखी है भारत सरकार ने, लेकिन रैली में नहीं गए क्योंकि वो कहते हैं कि मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है मेरे लिए यही है कि लांगा खुले और इसका सारा क्रेडिट से कौम को है। बड़ी बात, स्टार कैंपेनर है इस बार कांग्रेस के। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस ने इनको फेस बनाया है वहाँ पार्टी का, वहाँ ये जा रहे हैं। अभी भी हम देख सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश ही जा रहे थे रैली के लिए, और इनको पूरा यकीन है कि मोदी सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसलिए माहौल बदलेगा और ये जो स्टेट्स के नतीजे आएंगे वहाँ से 2019 का नींव पत्थर रखा जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ असीम बसी, एबीपी न्यूज़, अमृतसर। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।